Good morning, students. How are you? All you are enjoying? Yeah, really, you are all enjoying. In today class, we are going for the process. We are going to the step. We will explain the concept of recruitment. What do you mean by recruitment? In previous class, I told you recruitment means the process of searching the prospective employees, not the employees, existing employees. It means the candidates, prospective candidates, and stimulating. Stimulating means motivating them to manage them to apply for the jobs in the organization. That's why more and the purpose of the recruitment to stimulate more and more employees, prospective employees to apply in the jobs to the various source of recruitment. And recruitment is a positive process, where the selection we will learn it's a negative process. In the when we talk about the recruitments, we talk about two types of sources. One is the internal source, another is the external source. Internal source refers to inviting candidates from within the organization. It means the company will not use any external source, but it will apply internal sources. The first one is a transfer. Transfers from among the internal source. First one is a transfer. Transfer means shifting an employee from one job to another job, or from one department to another department, from one job shift to another shift. Suppose in our school there is a requirement, suppose in an office there is a requirement of a lab technician, and lab technician and a assistant lab technician is capable to handle that work. So that and there are two assistant lab technician, so we may transfer, or the manager may transfer the assistant lab technician to the lab technician to and transfer it from that post. One lab technician would be transferred to that post for the that technician. Or even more example, if suppose in our suppose due to somehow I'm not able to take the classes, and Ashna ma'am is transferred, or Ashna ma'am has given the chances to teach or take the subject of BST also. So in this way we can transfer the one employee from another employee, one job to another job, one department to another department, one unit to another unit, one shift to another shift. Next one is a promotion. Promotion means shifting an employee with the higher position, giving him more higher responsibility, giving him more prestige, more facilities, more pay, and other facilities. That is also a way for the recruitment. In with the junior or the subordinates is, in this a junior or subordinate is promoted to the next post or to the senior post. This is also a way of internal recruitment. Next one is layoff. Listen the layoff is carefully. To recall the temporary workers for the work is called layoff, who were temporarily separated from organization due to lack of work. Suppose if in an organization there is a shortage of work, there is a lack of work, in that case the company remove its temporary workers, its temporary employees, or those employees are not in use. And when these employees are not used, but now the demand for the product increases, in that case company can recall, company can employ that temporary workers, and that is called layoff. मीन्स जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, किसी कारण से ड्यू टू सम रीजंस दे आर रिमूव फ्रॉम द जॉब्स, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, due to lack of production, they are removed from the job. Now the same workers join the, or the same worker recalled by the company is known as the layoff. तो इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट के इंटरनल रिक्रूटमेंट का पर्पस और मेन मीनिंग क्या है? रिक्रूटमेंट का पर्पस मेन मीनिंग है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करना कि वो आए और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड करें, ठीक है ना। और अब रिक्रूटमेंट में हमारे यहाँ तीन प्रोसेस हैं कि एक फर्स्ट वन है ट्रांसफ़र, वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस, वन शिफ्ट टू अनदर, दूसरा प्रमोशन, एंड थर्ड वन इज़ ले ऑफ। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है
इससे एक तो फर्स्ट ऑफ क्या बेनिफिट होता है, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर मोटिवेशन होता है, क्योंकि जब उन्हें ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उन्हें ही प्रमोशन दे दिया जाएगा, तो दे विल वर्क हार्ड, दे विल वर्क मोर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन टू गेट द मोर इनकम, तो दे विल वर्क फॉर दैट. Second, internal recruitment also simplifies the process of selection and placement. Recruitment is the step before the selection and placement. So in the internal recruitment process, we have lack number of candidates. So in this way, the selection and placement process become easy. क्योंकि internal में हमारे पास जो कैंडिडेट्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कम होते हैं, तो इस तरह से हमारा जो प्रोसेस, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइज हो जाता है. और जब वो एम्प्लॉय हमारे इंटरनल काम कर चुका है, हमारे साथ काम कर रहा है, व्हेन ही इज़ ऑलरेडी वर्कड विद अस और इंटरनली वर्किंग विद अस, इन दैट केस उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ता, उसको उस कंपनी के एटमोसफियर पे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, उसकी ओरिएंटेशन में ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट नहीं होती, और इंटरनली है जो फिलिंग द जॉब सस्ता पड़ता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हमें डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट वेज हैं जहाँ से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उनमें खर्चा भी बहुत आता है, इंटरनल में खर्चा नहीं आता. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इंटरनल. इंटरनल सोर्स मीन्स हम अंदर के ही एम्प्लॉयज़ को उन पोस्ट के लिए अप्लाई करवाएं. अंदर कैसे गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, प्राइवेट जॉब में भी होता है कि अपने ही पुराने एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोशन दें, या नई शिफ्ट नई उसमें ट्रांसफ़र करें, या अगर जो हमने किसी वजह से बाहर निकाले हुए नहीं. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिल सकता. द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस, क्योंकि इंटरनल वाले हैं, इंटरनल हैं, लिमिटेड नंबर है, तो वी आर नॉट एबल इन द कंडीशन टू फाइंड द फ्रेश एंड न्यू टैलेंट. एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक. जैसे कुछ कंपनीज में या कुछ फर्म्स में होता है कि एम्प्लॉयज़ को पता है हमें प्रमोशन मिल ही जाएगा या हमारा ट्रांसफ़र तो हो ही जाना है, तो इन दैट केस दे बिकम लेथार्जिक. लेथार्जिक मीन दे शो द लेजीनेस इन देयर वर्क. दे आर नॉट too much interested in their work. That's why internal source become a has a this limitation. Next one is the spirit of competition among the employees may be hampered. अब लेथार्जीनेस होगी तो कंपटीशन भी क्या होगा, कम होगा. अब किसी को पता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है, और दूसरा अगर हमसे हाई पोस्ट पे है थोड़ी सी और प्रमोशन उसको ही मिलना है, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन होती है दैट इज हैम्पर्ड. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एम्प्लॉयज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बार बार ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, इन दैट केस भी जो एम्प्लॉयज होगा उसका काम करने का मन कम करेगा, उसकी इच्छा कम होगी, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी. तो स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से सोर्स पढ़े? इंटरनल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ. अब हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे भी हैं और बहुत डिटेल्स में भी हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए. तो आज हम पहले एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं. सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल सोर्स जो आता है दैट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? पहले तो एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग क्या है? जब आउटसाइड से हम कैंडिडेट्स लाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और जॉब को फिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपका कॉमन कैंपस रिक्रूटमेंट आता है. इसमें हमारे क्या होता है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना. वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम उनसे लिंक करती हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पे अपना वो फेयर लगाती हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पे अपनी स्टॉल्स लगाती हैं, और जिनमें जो भी ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सनल हैं उनको अपॉइंट करती है, उनको रिक्रूट करती है फॉर द वेरियस जॉब. दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड टू रिक्रूट द पर्सन. एंड इन दिस मोर इंटेलिजेंट और द मोस्ट इंटेलिजेंट students or the employees of that students of that campus can be choose for this purpose. Most of the big organization or reputed organization choose these types of selection. campus recruitment क्या हुआ, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, पर्सनल्स हैं, उनको वेरियस जॉब के लिए रिक्रूट करते हैं.
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेशन एंड प्लेसमेंट एजेंसी। अब मैनेजमेंट कंसल्टेशन क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोफेशनल टेक्निकल स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाती हैं। इन पे जनरली टॉप लेवल और मिडिल लेवल की प्लेसमेंट या उनके एग्जीक्यूटिव को चूज़ किया जाता है। जबकि प्लेसमेंट एजेंसी जो होती हैं उनमें हम नॉर्मली छोटे लेवल पे मींस जूनियर लेवल पे या बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। प्लेसमेंट में एजेंसी अपने लिए कुछ फीस लेती है, जबकि मैनेजरियल जो है ईयरली या मंथली बेसिस पे कंपनी से पेमेंट्स लेती हैं। और इसमें प्लेसमेंट एजेंसी में तो डाटाज अवेलेबल होते हैं, थोड़ी सी चार्ज के बाद हम देख सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट जो हमारी मैनेजर कंसल्टेंट है ये स्पेशली कंपनी इनको बोलती है कि इस लेवल पे हमें मैनेजमेंट कंसल्टेंट चाहिए, इस डिग्री पे चाहिए, तो स्पेशल उनको सर्च करते हैं और ये क्या करते हैं, कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम नहीं सुना होगा। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की बहुत सारी लिस्ट होती है, नेम रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि बल्क में जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं। जॉब प्रोवाइड नहीं करते, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होती हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनके रिज्यूम, उनके बायोडाटा उठाते हैं। मोस्टली ये गवर्नमेंट जॉब के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन जरूरी मांगा था। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जो कि उसको हैंडल करता है, वहाँ के अनएम्प्लॉयड्स जो पर्सन होते हैं या जो जॉब सीकर होते हैं उनके डाटास को मेंटेन करता है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जबकि प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजर कंसल्टेंट हैं ये प्राइवेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड टेलीविज़न। ये आपने इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट पढ़ा भी होगा। एडवर्टीजमेंट का एक कॉलम भी है आपका सब्जेक्ट में भी है। तो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स आपको करवाए भी गए कि इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, वेरियस प्रोस्पेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है। आजकल जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू ज़्यादा हो रही है, इवन तो नेट के थ्रू अभी हम आएगा, हम इंटरनेट के थ्रू भी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ तक स्टूडेंट कोई भी कन्फ्यूज़न है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एंटरप्राइजेस को नोटिस प्लेस किया जाता है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। यहाँ पर जॉब सीकर जो होते हैं वो प्रीमाइसेस में असेंबल होते हैं, स्पेसिफिक डेट और सिलेक्शन डन किया जाता है ऑन द स्पॉट। इसमें जनरली कैजुअल कॉलर्स या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड्स, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को चूज़ किया जाता है। इन्हें हम कैजुअल वर्कर्स और कैजुअल कॉलर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें फैक्ट्री गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हेल्पर चाहिए या मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। तो ये सारे डायरेक्ट, ये भी एक चीपेस्ट सोर्स है, जबकि एडवर्टीज़मेंट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और इसमें जनरली पर डे के हिसाब से फीस दी जाती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या आते हैं, अब इसे प्लेसमेंट से और मैनेजमेंट कंसल्टेंट से या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मत कंपेयर करना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बहुत सारे लेबर से के कॉन्ट्रैक्ट में बना के रखता है और उसे अपने काम के लिए कमीशन मिलता है। जब भी लार्ज नंबर में अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्वायर्ड होता है तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर उन लेबर्स को शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारे घरों के आसपास जब छत पे लेंटर डाला जाता है तो वहाँ पे एक मशीन आती है और मशीन के साथ जो वर्कर्स भी आते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, तो वहाँ पे उनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो वो सारे काम उनसे करवाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कैजुअल कॉलर्स। अभी मैंने पहले भी बताया था कैजुअल वर्कर्स और कैजुअल कॉलर्स। ए कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन और ऑफ विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और कंपनी क्या करती है, इन एप्लीकेशंस आती रहती हैं और कंपनी इन एप्लीकेशंस को जब भी ज़रूरत होती है तब इन्हें कॉल करके बुला लेती है। दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट वन आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब सपोज करो मैं किसी टीचर के लिए अप्लाई कर रिकमेंडेशन दे देता हूँ, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव्स हो चाहे मेरा फ्रेंड्स हो जॉब के लिए। तो इस तरह से भी हम एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करवा सकते हैं, रिक्रूट करवा सकते हैं, ठीक है ना। और
ये केसेस में जो भी एम्प्लॉय जो भी अपनी रिकमेंडेशन देता है वो उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरह जानता है, और कंपनी जो हेड होता है, जो मैनेजर होता है, वो भी अपने उस एम्प्लॉय पे भरोसा करता है कि वो उसके लिंक में है, उसके रिलेशन में है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट आजकल पता है इट इज़ बिकम वेरी कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर एक सर्टेन स्पेसिफाइड डिज़ाइन में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जिसमें जॉब सीकर अप्लाई करता है। naukri.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इन चीज़ों को, monster.com, ठीक है ना, times.com में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने नियर अबाउट 9 और 10 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े हैं एक्सटर्नल में। इसमें स्टूडेंट सबसे पहला हमारा क्या था, यस, कैंपस रिक्रूटमेंट। सेकंड था प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन दोनों को आप सेपरेट भी कर सकते हो। थर्ड वन था स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट वन था एडवर्टीजमेंट, देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कैजुअल कॉलर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वेब पब्लिशिंग। अब स्टूडेंट इसके अलावा अब इसकी भी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स बनती हैं, ठीक है, वो आप एक बार खुद स्टडी कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन भी है कि रोहन द डायरेक्टर ऑफ पेट्रोकेमिकल कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम द वेस्ट गार्बेज एंड यूजलेस मटेरियल। वो गैस बनाना चाहता है यूजलेस मटेरियल और गार्बेज को यूज़ करते हुए। ही डिसाइडेड दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज ऑफ बिहार। रोहन वांट्स टू डिप्लॉय people from the local surroundings. He also wants opportunity to persons qualified from technician institution to join his unit। तो वो पर्सन चाहता है क्वालिफाइड फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन द यूनिट। तो बताइए कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। जब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करने की बात हो रही है तो कौन सा आ गया आपका, स्टाफिंग आ गया, रिक्रूटमेंट हो गया। और फिर कौन से सोर्स से वो इस चीज़ को ज़्यादा ला सकता है। अब डायरेक्ट उसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से चाहिए क्वालिफाइड पर्सन, तो वो कौन से को अप्लाई करेगा, वो इसमें क्या करेगा, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने रिक्रूटमेंट्स की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दोनों के मेरिट्स। डायरेक्ट में हमारे 3 थे, प्रमोशन, इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमारे थे प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ले ऑफ। और एक्सटर्नल में हमारे 9-10 थे। 10 में से हमने इसमें एक केस स्टडीज़ भी किया है, तो प्लीज़ साथ साथ अपना पेंडिंग वर्क पूरा कीजिए, केस स्टडीज़ पढ़िए। इतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।